and Anjana wants to share that magic has happened in Punjab. Now she wants to share something. हाँ जी, प्रेयर नहीं करनी पहले शेयरिंग? प्रेयर से पहले करनी है शेयरिंग, तो हाँ प्रेयर कर लेते हैं. वेरी वेरी ट्रू. वी कैन स्टार्ट द प्रेयर. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट. Put yourself on mute, please. All of you put yourself on mute, please. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, thank you, thank you, universe. Thank you, God, I love you. Thank you, universe, I love you. Thank you, God, thank you, universe, for giving me this beautiful day. Thank you, God, thank you, universe, for giving me these beautiful moments. Thank you, God, thank you, universe, for giving me these magical sessions which are bringing magic in my life. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you to all the doctors, nurses, staff of all the hospitals for taking care of the patients. We sprinkle magic dust on all the hospitals, to all the patients, to all the participants, or to all the members of all the hospitals for their good being. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me wonderful parents. They took care of me. They love me. They protect me. They support me. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me wonderful siblings. They love me. They respect me. They take care of me. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, universe, for wonderful teachers of mine, my school teachers, my college teachers, my mentors who are showing me the right path. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me a healthy body, healthy cells, healthy organs, healthy systems, healthy, healthy and wealthy, all the parts of my body. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me the failures. They are giving me lessons. I'm learning from them and I'm taking each and every step after it. Thank you, God. Thank you so much. Thank you, God. Thank you so much for making me so attractive, so beautiful, that I am taking interest in each and every task of mine. I am becoming better day by day. Thank you, thank you, thank you. And magic is happening in my life every day, every moment. Please accept my gratitude for every moment. Thank you, thank you, thank you. Bless you all. Thank you. A grateful heart is a magnet for miracles. So miracles are happening to every participant. All the best. Yes, now I can request Anjana to please share your magic. Okay, good evening everyone. मेरे साथ 2 मैजिक हुए आज. रिलेशनशिप वाले दिन पे मैंने 2 लोगों के साथ करना शुरू किया था. तो उनमें से एक का आज सुबह 7:15 बजे फोन आया मुझे, एंड वो इतने लाइवली और इतने अपनेपन से बात कर रहे थे ना, इतने प्यार से बात कर रहे थे मेरे साथ कि मतलब कि मेरी जो प्रेयर्स थी वो आंसर हो गई. सो थैंक यू मोनिका, एंड थैंक यू एवरीवन. आप लोगों की स्पेस में ही ये सब हुआ है. Thank you for sharing. देन उसके बाद जो सेकंड मैजिक मेरे साथ हुआ, मैं सौम्या को उठाया मैंने मॉर्निंग में तो हक किया मैंने उसको, तो कहती मम्मा आपको एक बात बताऊं,
अब ना मेरे को मेरे वर्क पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है. I've started वाह, loving my work. So I said, मैं स्माइल करी, कहती अच्छा आप मेरे लिए कुछ लिख रहे थे ना इतने दिनों से. मैंने कहा आजा मैं तेरे को डायरी दिखाती हूँ मैं क्या लिख रही थी तेरे बारे में. हाँ, उसने पहली लाइन ही पढ़ी ना, she हाँ, smiled at me हाँ। and like thank तो you so सौम्या को much. कहना आंटी भी उसके बारे में लिख रही थी. वो सुन रही है और स्माइल कर रही है. Bless you, मेरा बच्चा, bless you. I really want you to get up and show what you are. You have so much of potential in you, बच्चे. Bless you. Bless you from my heart. थैंक यू कर रही है वो आपको. एंड आई डू बिलीव इन मैजिक. मतलब कि अब ना मेरे को रिवाइंड करती हूँ तो मुझे दिखना शुरू हुआ कि मैजिक तो शुरू से ही होता रहा है, जो मैं बोलती रही हूँ वो होता रहा है, ठीक है. Yes. बट ओनली थिंग इज कि आई वाज नॉट इन प्रेजेंस ऑफ दैट. Absolutely. Everybody सबकी लाइफ में मैजिक होता है. We are not aware that it is happening. When you show lots of gratitude, when you are so thankful to things, you know, the magic will happen in your life. And one more thing, Monica, I want to add कि since I have started practicing gratitude, so I am much more peaceful, much more happy, you know, and I am at peace with myself. Ah, very good. Very, very good. Okay, great. Great, 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 great. Wonderful. So, let us start. And great, good to see you. Good start. Thank you so much, Anjana, for sharing. I'm telling you, magic is happening in everybody's life. Just look at it. Believe me, trust yourself every day, every moment. Please enjoy. If you have that frequency, the things will start happening in your life. Please be happy. मस्त मरो, मस्त मस्त मस्त. लोग भी आपसे जलना शुरू कर दें, यार ये इतना खुश क्यों रहती है, क्या प्रॉब्लम हो गई. लोग अपने अपनी उससे नहीं परेशान होते, दूसरों की खुशी से ज्यादा परेशान होते हैं. And bless them also. So we every day we need to take the dose of gratitude every morning, every afternoon, every evening, and every night. Yes, Vikram, you want to say something? It's Anmol this time, Monica. Yeah. Okay, Anmol, you share first. अच्छा नहीं नहीं अरे बोल ले अरे बोल ले भाई भाई बोल ले. बड़े दिन बाद आवाज सुनने को मिल रही है तेरी. अरे thank you bro, thank you. Actually got caught up with something. Anyways, तो मोनिका जो कल आपसे शेयर किया था, I would like to share that with the group as well. Absolutely. है ना. तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि कल मेरे जो है मेरे दादाजी थोड़ी दूर पे ही रहते हैं मेरे घर में, and he's 90 years old. और उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, I'll tell you in very short. और उसके लिए मैं कुछ उनको आयुर्वेदिक तरीके से दे रहा था, उससे फायदा भी हो रहा था उनको. एंड तो क्या हुआ कि उनका एक केयर टेकर बंदा रखा हुआ है जो केयर टेकर है, ठीक है. एंड उससे कल क्या हुआ कि कल परसों जो है दादाजी को उसने काफी सारी चीजें नहीं दी जो नॉर्मली देनी चाहिए. तो मैं कल जब लेके गया सामान, एवरीडे आई गो एंड यू नो विजिट हिम एंड देता हूँ सामान जो भी उनके दिन भर के खाने का होता है. तो जब कल नहीं दिया तो मुझे, क्योंकि आई एम लिटिल सेंसिटिव अबाउट दादाजी और व्हाटएवर यू कॉल, आई एम वेरी क्लोज टू हिम, तो मेरे को पता नहीं गुस्सा चढ़ गया. और आई जस्ट हैपेंड यू नो आउट ऑफ ब्लू, एंड मेरे को गुस्सा चढ़ गया. और बेसिकली दादाजी का गुस्सा दादाजी को सुना रहा था, सुनाते सुनाते मेरे को इतनी तेज गुस्सा चढ़ा कि बगल में वो केयर टेकर बंदा भी खड़ा था, और वो आप गुस्से में यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, तो मैंने उसको पकड़ के सुनाना शुरू कर दिया, तू ख्याल नहीं रखते तो. और जब मैंने तो सुना दिया तो ऑफ कोर्स ही आल्सो रिटेलिएटेड, उसने भी कुछ जवाब देने शुरू कर दिया. एंड यू नो थिंग्स गॉट रियली मेस्ड अप एंड कॉम्प्लिकेटेड. एंड आई वाज लाइक कि, और फिर मैं वहां से मुझे समझ में आ गया कि भाई मैंने कांड कर दिया है, गड़बड़ हो गई है. तो मैं वहां से मैं समझ गया 2-4 मिनट में बात करने का तो स्कोप था ही नहीं. अब मैं सामान रखा और वहां से निकल कर आ गया, ठीक है. एंड बाबूजी बोले कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा, लेकिन मैं बहुत घबरा गया. तो देन आई कॉल्ड अप मोनिका कल दोपहर को एंड आई टोल्ड हर कि ऐसा ऐसा हो गया है, हमें समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या. एंड आई एम रियली वरीड कि वो बंदा क्योंकि जिसके थ्रू वो एम्प्लॉयड है उससे बात करने लगा था फोन पे कि यू नो आई वांट टू गो एंड आई वांट टू डू दैट एंड दिस एंड दैट. तो मैंने कहा यार
अब मेरी वजह से बाबा जी बहुत मुश्किल में आ जाएंगे कि देयर विल बी नो वन टू टेक केयर ऑफ हिम अगर ही लीव्स राइट नाउ, और मैंने मैसअप कर दिया सिचुएशन को। तो मोनिका टोल्ड मी कि तू कुछ मत कर। तो एक तो शी टोल्ड मी अ थॉट प्रोसेस कि जहां पर विजिट कर उसी सीन को, और विद अ मैजिक क्या कहते हैं उसको, डस्टर, यू इरेज दैट सीन and then you start giving blessings to you. Thank you, thank you, thank you. And I also, Monica, I also used क्या है वो Ho'oponopono, ठीक है ना, because I felt the need to do that. It's the same gratitude only, yes. It is a form of gratitude only. तो I just felt the need to say sorry also additionally. तो इसलिए मैंने Ho'oponopono use करना शुरू कर दिया। मैं उसको इमेजिन करता रहा, मुझे पता है मैं इतना डरा हुआ था, मैं आधे पौन घंटे तक करता रहा, और घबराते हुए मैंने 1 घंटे बाद बाबा जी को फोन किया, 1 सवा घंटे बाद। मैंने कहा सब ठीक है वहाँ पर? बाबा बोले हाँ एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब ठीक हो गया। आई वाज सो रिलीव। फिर मैं शाम को 4 बजे गया, क्योंकि बाबा जी से तो मेरी बात हो ही नहीं पाई थी। सुबह 4 बजे गया, वो भी मिला, वो नॉर्मल रिएक्ट कर रहा। मैंने जाके लेकिन उसको बोला कि नहीं यार, मेरे से सुबह रिएक्शन मेरा गलत था, मुझे समझाना चाहिए था तुम्हें, लेकिन रिएक्ट करना मेरा भी गलत हो गया। और उसके लिए मैंने उससे माफी भी मांगी और उसको ग्रेटिट्यूड भी शो किया, तुम इतना ख्याल रखते हो दादाजी का, ये करते हो वो करते हो, ये वो किया। तो मुझे तो कुछ नहीं बोला। आज मुझे बाबा जी ने बताया सुबह कि वो बाबा जी से बाद में कह रहा था कि भैया तो ग्रेट है, इतना तो ग्रेट मैंने कोई आदमी नहीं देखा कि आके मुझसे माफी भी मांगा, उन्होंने मुझे थैंक यू भी कहा, उन्होंने मेरे को वो भी किया। एंड ही फेल्ट एंड आई सॉ, आई मीन या तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मोनिका, या आई सॉ दैट चेंज इन हिज, जो हम कर रहे थे ना कल, कि उसका एटीट्यूड बदल जाएगा बाबा जी को करना। आज भाई वो कभी खाने को इतना पूछता नहीं, आज खाना लेके बाबा जी कह रहे मेरे को नहीं खाना, वो कह रहा नहीं थोड़ा सा तो खा लीजिए, थोड़ा सा तो खा लीजिए, ऐसा हो रहा था सीन। मैं वाओ क्या क्रिएट हो गया, मतलब नाउ ही इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ दादाजी एक्चुअली। So thank you, Monica, for guiding me, and thank you for helping me out in this one, and that actually helped a lot of stuff, Yes. So thank you. Thank you for sharing this. It's very, very important. The maids who are working at our place, these are the people, they are hungry for nothing but appreciation. So when you give that, they are overwhelmed, वो तुम्हारी डबल सेवा करेंगे. That is why I told Anmol just, अगर हग भी करना पड़ जाए ना, मैं सच्ची में जादू की जप्पी जो है ना, वो आज वीडियो वही सिखाऊंगी आप लोगों को. So it is a magical moment for them कि उन्होंने मुझे ये किया. For them it is impossible that this person will appreciate me. So when we give lots of gratitude to these people, वो आपके लिए literally सब कुछ कर जाएंगे. I'm telling you, because nobody appreciates them. नहीं मैं एक्चुअली क्या होता है, नहीं ये आपकी बात बिल्कुल सही है. I normally do, ऐसा नहीं है, I normally do appreciate everybody, मतलब चाहे मेरे घर में भी खुद में भी काम करते हैं, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ. बट इस जट कल मैं ऐसा नहीं कि उसको कभी तारीफ नहीं बोलता, नहीं. कल क्या हुआ, कल टर्न ऑफ इवेंट्स कुछ ऐसा हुआ कि बस वो निकल गया, आई डोंट नो क्यों निकल गया. नॉर्मली मैं हमेशा अच्छा ही बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि कभी उसको फील कराया बुरा. देखो, that is the moment and it is good that it has happened. Just imagine, it is very good it happened, so that now you have got the person to show gratitude, so that he will take more care of your Dadaji. बिल्कुल I'll do that. I'm doing that in fact regularly. Thank you for sharing. Thank you, Monica. Thank you. Yeah. Yes, Vikram, you want to share something? मैम जो इसने कहा है, मेरा वही उसी के वर्ड्स थे. I was going through your old video you shared. A grateful heart will become a more happy heart. Absolutely. These were the words I was about to share. और इसकी look at his story. टाइमिंग है ब्रो, टाइमिंग. मैम आप क्या किया उन्होंने? या नितेश मैम क्या किया उन्होंने? डस्टर क्या बोले आपने? समझा नहीं उन्होंने क्या किया वो इंसिडेंट्स के लिए. I'll tell you. This is a little bit small technique. When something happens and you don't want to keep it in your mind, कि भाई ये क्यों कर दिया, कई बार हो जाता है. At that moment of time you become so aggressive, ये तुमसे गलती हो जाती है, तो उसने काफी गुस्सा कर दिया, वो सब हो गया. तो आप उस मोमेंट को, क्योंकि if that moment stays in your mind, so what happens is कि वो ऑक्यूपाई कर लेता है, फिर आप कुछ और नहीं कर पाते. So really feel bad about it कि मेरे से, और गिल्ट पे चले जाते हो. And I don't want all of you to go into guilt and low vibrations हो जाए. तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है within few minutes, जो अगर ये सब हुआ,
और आपसे वो हो जाता है. Just close your eyes, imagine there is a white board and visualize that moment. वो जो moment हो रहा है, वो event हो रहा है, अपना हाथ से पकड़ना है. This is a magic duster in my hand, and you wipe out each and every moment over there. When you wipe it out, that moment will be gone. And thank you for showing me. I have lots of gratitude to those people. जो भी उस एपिसोड में है, जो भी उस मोमेंट में है, you're showing lots of gratitude. Thank you. That is nothing, because this happened because he was already praying for his दादाजी. तो एक ये हर एंगल से प्रेयर कर रहा था, चाहे डॉक्टर्स थे, हर तरह से प्रेयर कर रहा था. एक ये एंगल छूटा हुआ था, वो वाज टेकिंग केयर टेकर का, ये छूटा हुआ था. यूनिवर्स ने इसको एक क्लू दिया कि दिस इज रिमेनिंग, डू दिस. सो दिस इज अ क्लू फॉर हिम. नाउ ही नोज व्हाट ऑल एंगल्स ही हैज टू टेक केयर. सो दिस वाज द टेक्निक. कोई टेक्निक आपको अपने माइंड से हटानी है जो नहीं जा रही है, तो आप एक बोर्ड देखो सामने, विजुअलाइज करो वही वाला एपिसोड हो रहा है, और अपने हाथ में आपका मैजिक डस्टर है. और मैजिक डस्टर, either you do it like this or you hold the magic duster, just wipe it out. एक एक चीज हटा दो, and then show lots of gratitude to those people who are there in that episode. You just करके देखो, it is awesome technique. और जो एक ये टेक्निक बोल रहा है होपोनोपोनो, that is nothing but there are 4 statements. I am sorry, please forgive me, thanks, and I love you. So when you say I'm sorry, you are actually sorry from the heart कि मेरे से ये गलती हुई है और I'm really sorry. Second, please forgive me, मुझे माफ कर दो कि मेरे से ये गलती हुई है, आगे से नहीं होगी. Thank you, then you are showing gratitude to that thing. And I love you, again showing gratitude, deeply gratitude. So कोई भी चीज, चाहे आपका पेन हो, चाहे कोई एपिसोड हो, कोई इवेंट हो, कुछ हो, why I'm sorry and please forgive me, these are the 2 statements. They will actually pull out the negativity of that area, either whether it is a pain, whether it is an event, whether it is a moment, whatsoever it is. क्योंकि जब हम प्राणिक हीलिंग करते हैं तो हम सबसे पहले नेगेटिविटी को हटाते हैं, एंड देन उसके अंदर हम पॉजिटिविटी भरते हैं. तो हीलिंग्स में क्या होता है, पहले हमने नेगेटिव वाला, देखो ना, आप जब झाड़ू लगाते हो, झाड़ू से सारा हटा देते हो, साफ कर दिया, देन आप ग्रेटिट्यूड का पोछा लगाते हो. इट इज दैट वे. तो आपने आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी से आपने उसको हटा दिया. द नेगेटिविटी इज थ्रोन आउट ऑफ दैट प्लेस. Now you are pouring the positivity, that is of the gratitude. So that is what he used. Similarly, उस दिन विक्रम जो शेयर करा था, it was the same thing. The 4 statements: I love you, please forgive me, thanks, sorry, I'm sorry, please forgive me, thanks, and I love you. These are the 4 statements. This is nothing but Japanese technique, that is Ho'oponopono. और अगर आप YouTube में जाओगे, you will get many videos on this. Great, thank you so much. So we can go ahead. Ma'am, something similar happened with me yesterday. So Okay. we were actually, according to the activity, we have to be very calm for 24 hours. But 2 things happened, and I lost my temper. And I think one was very much needed, because I had so much built up inside me that I need to take it out in one way or another. And after that, I because you told me, because I think now what I feel is that even if you're doing something wrong, something negative, I've started to realize it. Earlier, the realization was not there. Very good. Now, when that happened, after that, I was thankful that, okay, at least I have that space that I can express myself. And the second thing which happened, it was my friend's birthday, so I had ordered something for her, and the delivery boy, he took around 2 hours to deliver it. And at the end, I got really, angry. I was trying to keep my calm, but Wow. I also got to know that the guy, he was actually
he was using a bicycle to deliver that. So I felt very bad. So okay, that happened, but I was not able to call him or something. But I reversed the situation. I said thank you to the Zomato. I said thank you to the company who was, the where I ordered from. I said thank you to that guy, and I think his brother got unwell. That's why he had to do it. So I also sent a blessing to his brother that may he get well soon. So I get that realization. Okay, earlier I used to get angry. I think the realization was not there, to be honest. But now, even on small little things, I've started to get that, that no, I am doing something wrong. No, I am thinking negative. So that is a huge change, I would say. Wow. Realization is. Congratulations, Ishni. That is Thank you so much, actually, ma'am. so that means the magic has started happening in your life. Yes, ma'am, and I can totally feel it. Wonderful. Thank Great. you, ma'am. Thank you Great, so much. great. Thanks for sharing, Ishni. Thank you so much. So this is how we need to take care, basically this is the practice that we have to be in the highest mode, highest mode, that is happiness. So we are here to be happy. That's it. हर कोई सिर्फ happiness के लिए जी रहा है. So just keep spreading happiness. Be happy and make others happy. That is the way of life. Whatsoever happens, it's okay. That is given by God. And I know everything we are going to attract in our life. That's great, Okay, so everyday practices. So all of you must have done. कल किस किसने magic खाने से पहले किया? Gratitude show किया अपने खाने को. Okay, me. I did Ishneet. Oh, wonderful. So you have to keep this practice on. कुछ भी खाओगे, चाहे एक बिस्किट खाओगे, because आप ये देखो, खाने में आपने मैजिक डाला, वो आपकी बॉडी में जा रहा है. इट इज हीलिंग ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी. प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव ब्लेसिंग्स टू योर फूड. और सबसे पहले जो खाना बना रहे हो, जो आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते टाइम भी इफ यू पुट मैजिक डस्ट खाना बनाते टाइम, तो आपका खाना सुपर से भी ऊपर बनेगा. वो मैंने बहुत आजमा के देखा है. तो आप देखोगे, यू विल सी दैट इट इज डेफिनेटली अमेजिंग. एवरीबडी वुड लव इट कि आज के ऐसा मैंने कभी नहीं खाया, इतना बढ़िया खाना बना. सो यू विल लव इट. सिमिलरली व्हेन यू आर ड्रिंकिंग समथिंग, जस्ट गिव पुट अ मैजिक डस्ट एंड जस्ट हाथ को पकड़ के यू प्रोग्राम द वाटर एंड ड्रिंक इट. If the magic is going to happen. So your body is having 70% of water. तो आपकी हेल्थ आपकी मुट्ठी में है. So now you are getting the techniques. इस हफ्ते से, कल से रोज एक टेक्निक सीखोगे जो आपने रोज की प्रैक्टिस के लिए करनी है. रोज. So start writing what you are doing. एक हफ्ता हमने सीखा ग्रेटिट्यूड करना, कैसे करना, क्या स्टेटमेंट है, किस तरह से यूज करना है, जब हमने लिखना है. अब हम शुरू कर रहे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे कैसे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं so that every moment is in our hand. So कल आपने सीखा, जब आप खाना खाओगे तो खाना खाने से पहले आपने ये करना है. आज आप सीखोगे. Today is about money. So everybody should be, alert. आज जो सीखने जा रहे हो, ये आपको 10 गुना ज्यादा आगे ले जाएगा आपकी जिंदगी में. आई एम 100% श्योर इफ यू डू इट. और मनी तो ऐसा पॉइंट है विच एवरीबडी वांट्स इट. सो ये वाला जो फैक्टर है, दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई मैजिक मेनी फोल्ड्स. सो लेट अस गो हेड. एंड मेरे ख्याल से बहुत सारी शेयरिंग हो गई. अभी कोई बाकी है शेयरिंग तो बता दो, नहीं तो वी कैन गो हेड. मेरे पास तो शेयरिंग रहती है मोनिका. आप बोलो आपके पास टाइम है सुनने का तो बताऊं मैं. मोनिका, मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ जी सविता बोलो. याची, मैं और मम्मा साथ में करते हैं ना. सविता मॉम का नाम है, याची मेरा नाम है. अच्छा, तो मेरे को ना मैजिक डस्ट वाला आई डिड इट today. So when we are like pouring magic dust in our food, then I chanted thank you. That's it ना, कि we should say something else as well. So आप जिसके ऊपर मैजिक डस्ट डाल रहे हो, जो आप चाहते हो,
कि मैजिक डालो तो ये डिलीशियस, दिस डिश विल बी डिलीशियस एंड एवरीबडी इज गोइंग टू लव इट। जैसे माइंड में आपने वो निकाला और आपने आंख बंद करके विजुअलाइज, अरे सब इतने रेलिश से इतना खा रहे, इतना मजा आ रहा है उनको खाने में, आंख बंद करी, जस्ट करा, खत्म कहानी। इट टेक जस्ट हार्डली 10 to 15 seconds। आप जो चाहते हो बच्चे, आप जो चाहते हो आप वो विजुअलाइज करोगे, बोलना चाहते हो बोलोगे। अब देखो 10 लोगों के बीच में बैठे हो तो आप ऐसे ऐसे करोगे, ये क्या कर रही है, ये पागल है क्या है, हो सकता है ना, बोल सकते हैं लोग। तो आप जरूरी नहीं है, आंख आंख बंद करके भी मैजिक डस्ट उसमें डाल सकते हो। यू आर विजुअलाइजिंग, इट इज हैपनिंग एंड इट विल हैपन। और किसी बंदे को अगर आपने ग्रेटिट्यूड शो करना है और मैजिक डस्ट डालना है तो उसको देखे 3-4 बार आंख ब्लिंक कर दो, दिस इज द मैजिक डस्ट आई एम सेंडिंग टू हिम, ही इज काम, he is perfectly fine, all chakras are balanced, he is healthy and he is so happy। दूसरा को गुस्सा चढ़ा हुआ है, आपने अगर ये भेज दिया उसके, उसको ये आपने मैजिक डस्ट डाल दी, ऑटोमेटिकली 2-3 मिनट में ही विल बी फाइन, ही विल बी इन पीस। सो कोई सिचुएशन आ जाए, कोई बिहेवियर आ जाए, यू कैन इमीडिएटली ऑल्टर इट। आप विदिन 1 मिनट आप उसका असर देख लोगे बच्चे, ठीक है। थैंक यू बच्चे। ओके, so today is money magnets, yay! It is the only with gratitude that life becomes rich। So आज से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, they are going to become rich in gratitude, rich in showing love to your money, and you are going to become money magnet। Gratitude is riches, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। आज से कंप्लेंट खत्म हो जाएगी आपके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी वर्बल, आपकी लैंग्वेज आपको किल कर देती है। आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो बट इफ यू स्पीक नेगेटिव वर्ड्स, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में मैजिक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स योर वर्बल कंप्लेंट्स आर स्टिल देयर। So stop complaints, use positive words, no negative words। मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकती, वो किसी बच्चे को कभी नेगेटिव वर्ड्स में नहीं बोलना, ऑलवेज इन पॉजिटिव। अब प्रेयर्स में भी आप लिखते हो ना, आई एम डेट फ्री, नहीं, आई एम कैश रिच, ऑलवेज इन पॉजिटिव। आई एम कैश रिच, आई एम अ मनी मैग्नेट। पैसे नहीं है, मनी इज कमिंग, मनी इज फ्लोइंग इनटू माय लाइफ। मुझे तो याद है मैं छोटे में थी, मेरी दादी मुझे ये कहती थी, कभी ये मत बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं है। यू शुड नेवर से दैट। कभी बोलना ही नहीं चाहिए मेरे पास पैसे नहीं है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। इफ यू डोंट हैव मनी राइट नाउ, तो मनी इज, आई एम अरेंजिंग मनी, जस्ट ट्विस्ट द सेंटेंस। व्हाई डू यू हैव टू से मेरे पास मनी नहीं है? सो नहीं, मेरी दादी हमेशा कहती थी जो है, जितना है ना, उसका हमेशा शुक्रिया अदा करो। हालांकि मुझे कभी उस समय नहीं पता था इसके मीनिंग, ऑफ कोर्स बात है, बट वो हमेशा कहती रही हैं कि जितना है ना, भगवान ने हमें बहुत दिया है, जितना भी दिया है। अगर मतलब मैं जैसे कई बार जिद करता था, यार मेरे को ये चीज चाहिए, अभी तो नहीं दिला सकते कोई बहुत महंगी चीज या कुछ है, तो कहती कोई बात नहीं है तो नहीं है, बट जो भगवान ने दिया इसके बारे में मत सोच कि नहीं है तो नहीं है। ये सोच कि जो है तेरे पास, जितना है उसके बारे में सोच के थैंक यू कर लो, मतलब शुक्रिया अदा। बड़े बुजुर्गों को पता था ये सारी बातें, और वो मुझे हमेशा से कहती थी, जैसे हम बाहर मार्केट गए हैं, ठीक है, और मैं उनके साथ ही, उन्होंने मेरा उंगली पकड़ी हुई है, हम लोग गए हैं, तो कहीं मेरे पास पैसे नहीं थे, दादी पैसे नहीं है मेरे पास, ऐसे नहीं बोलते पैसे नहीं है, पैसे आ जाएंगे, मतलब शी यूज्ड टू एक्सप्लेन मी दीज थिंग्स। तो उस टाइम तो मुझे नहीं समझ आया था कि क्यों बोला जा रहा है ये, लेकिन मुझे ये पता है कि ये नहीं करते, ये नहीं बोलते। बट हम बहुत बारी बोलते हैं, यार पैसे तो लाई नहीं, मैं अब क्या करेंगे, छोड़ यार, पैसे बड़ी मुश्किल है। जब मेरे ना पर्स में ना मोरी है, मैं जितने पैसे लाती हूँ ना, वो पैसे सारे निकल जाते हैं। अब आपने खुद अपने मुंह से बोला है कि पैसे आते हैं और निकल जाते हैं, तो यूनिवर्स को ये सुनाई दे रहा है कि ये कह रही है पैसे आते हैं और निकल जाते हैं, और वाकई पैसे निकल जाएंगे। Just be aware of the words that you are using, especially for money. Yes, Sunanda, welcome. Thanks for taking the initiative of reading Money Magnets. Thank you for giving me a chance, Monica. Thank you. Thank you so much. I just put the book on. Okay. Yeah.
Great. So, Okay. just a sec. And listen to each and every word carefully. In fact, आपके पास PDF फाइल है, आपके मोबाइल में भी है, स्क्रीन पे भी है. जो रीडिंग कर रहा है उसके साथ साथ पढ़ो, बिकॉज हर वर्ड नपातुला है हर चैप्टर के अंदर. इफ यू रीड इट अलोंग विद इट यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर. यू नो, मैं कोशिश तो करती हूँ कि जो भी इसके क्रक्स है मैं स्लाइड्स में दिखा सकूं, बट स्टिल आई वुड लव एवरीबडी शुड रीड अलोंग विद इट. Just take these things little bit seriously, you know. Yes. Thank you, Sunanda. Yes, go on. Yeah. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, great. Chapter 9, The Money Magnet. It is only with gratitude that life becomes rich. Okay. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. Now you will be replacing your complaint with gratitude. बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ. कंप्लेंट अगर आप करते हो 2 मिनट पीछे चले जाओ. जब वो आपने कंप्लेंट बोली उसको ग्रैटिट्यूड की फॉर्म में कर दो या इरेज कर दो एंड देन reconfirm it that in a gratitude mode. Yes. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money and complaining. Yeah, when you say यार इस महीने का ये बिल भी आ गया, ये बिल भी आ गया, ये भी, हाय राम अभी कैसे होंगे, अभी तो लॉकडाउन है, सैलरी भी नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रहा. These are all complaints. You will not say all these things. Stop doing that. We'll tell you what is to be done now. And complaining keeps you in poverty. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the services or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment.
If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have even paid for them. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words thank you paid on every bill दीदी as I pay. कल आप आ रहे हो कि नहीं? कल नहीं आ रहे हो ना, तो गुलाई तोड़ के जाना मेरे को. Fine. Amol. Oh, फिर ठीक है. Monica, Amol has to है. mute. Yeah, मैंने कर दिया mute. Yes. On every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instant write across the bill, thank you for the money. Then when I had the money to pay it, I would add, thank you paid. Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills and use gratitude's magical power by writing across them, thank you for the money. And feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in the capital bold letters, thank you for the money. Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of the magic words, thank you paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, thank you for the money. And feel as if you are saying thank you because you have the money for the bill. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. I will repeat this. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Imagine gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. The moment you pay the money with gratitude, it will come back to you. The money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. Yes. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. Yes. You could have so much gratitude when you pay a bill of $50 that you could receive back hundreds of dollars. Yes. Thank you, Sunanda, for creating such wonderful chapter with everyone, you know. So it is not how much amount that is being paid. It is about how much, with what gratitude you are paying the bill. चाहे एक वो सब्जी वाले का बिल हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, बिकॉज आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते टाइम ना आप ये नहीं, अरे मैं पे कर रहा हूँ यार. द ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच. इलेक्ट्रिसिटी है तो लैपटॉप चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है तो मेरा काम चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिसिटी. यू शुड बी ग्रेटफुल. प्राइसलेस है इलेक्ट्रिसिटी को. वाटर का बिल आ रहा है तो वाटर का इतना मिनिमम अमाउंट आता है, उसमें भी हमें लगता है कि क्या, लेकिन शो लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू दैट. वाटर नहीं है तो मेरे घर का क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मेरे घर का क्या होगा.
So you have to show that, because the service that you are getting is priceless. So show lots of gratitude. In fact, आप रिक्शा से भी आते हो, रिक्शा में बैठते हो, उसको भी 10 रुपए देते हैं ना, तो show lots of gratitude to that person. Multiple times it will come. आपने 10 दिए हैं ना, आपको हजारों में वापस मिलेंगे. How? You never know. But show gratitude. जब आपके हाथ से पैसा जा रहा है, you have to show lots and lots of gratitude, the money, you know, whenever you are giving. So how you are going to do that, I'll just share it with you. So stop complaining. मेरे पास पैसे नहीं है यार, अगले महीने ये बिल आ रहा है, ये आ रहा है. Stop complaining. पैसों के मामले में ये बोलना जिप कर दो. Just stop complaining about the money. मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पापा नहीं. देखो, पेरेंट्स को आप नहीं समझा सकते, पेरेंट्स वही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे. बट आप क्या कर सकते हो, जब वो बोल रहे हैं ना, यू शो द ग्रेटिट्यूड इंस्टेड ऑफ देम. क्योंकि वो आएगा, कोई ना कोई बोलता जाएगा. बट व्हेन यू लिसन टू दैट, शो द ग्रेटिट्यूड, नो मैटर whosoever it is. आप दूसरे को नहीं समझा सकते आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, बट एटलीस्ट यू कैन गिव ग्रेटिट्यूड टू दैट थिंग. जस्ट कीप डूइंग इट. जेलसी कि उसके पास यार इतनी अच्छी ड्रेस है, मेरे पास इतनी अच्छी ड्रेस नहीं है, उसके पास ये कार है, मेरे पास कार नहीं है, उसका पास ये है, मेरे पास नहीं है. Stop it. Those who have got the things, it is just because of their gratitude shown to the universe. That's it. You show it, you will get it. Stop comparing your lifestyle and people's lifestyle. Stop comparing actress lifestyle and Tata Ambani's lifestyle. They have shown the gratitude, they are so rich. Show the gratitude, you will become also rich. बहुत सिंपल है ये बात, बहुत सिंपल है. और जो मनी देना है, आपने किसी को पे करना है, या किसी को उधार लिया हुआ है, या कुछ उस जिससे उधार लिया हुआ है, इसको लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड शो करो. एंड आई एम पेइंग द बिल, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू राइट. सो वो टेंशन लेना बंद कर दो कि मुझे उसका बिल भी पे करना है. पहले, सबसे पहले आज से आपने ये टेंशन लेनी ही नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है. आप अपने घर में बैठे हो, आप जहां बैठे हो वहां आसपास पैसा ही पैसा है. इट इज मनी इज इन अबंडेंस इन द यूनिवर्स. द ओनली थिंग इज, बैंक से पैसा लाते हो ना, बैंक में क्या करते हो, स्लिप भरते हो, स्लिप देते हो और बैंक आपको पैसे दे देता है, आपका वो अकाउंट है. ये यूनिवर्सल बैंक है जिसके अंदर पैसा ही पैसा है, सामान ही सामान है, आपकी ड्रीम की हर चीज मिलती है वहां पे. एक ही कंडीशन है, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड. 10,000 ग्रैटिट्यूड लिखोगे, 10,000 से वो जैसे बिग बॉस देखते थे ना कि आपने इतना कमा लिया, अब इतने के ही सामान ले सकते हो आप, बस उतना ही है. जितना ग्रैटिट्यूड कमाओगे उतना ही यूनिवर्सल बैंक से आपको मिलेगा. As simple as that. Never ever complained about anything. Never ever complained about your kids. Never ever complained about your health. Stop complaining. Start living with gratitude. See the lifestyle you will be having. So you get lots of services. Rent, कभी सोचा है कोई एक घर आपको दे रहा है, अब रहने के लिए अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो आप कहाँ जाते, कहाँ रहते? So at least that provision is there so that I can rent देके मैं ऐसे एक घर में अपने छत के नीचे बैठी हूँ. वाओ, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. गिव ग्रेटिट्यूड टू योर लैंडलॉर्ड. इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो हम कैसे रहते, इतनी गर्मी में कैसे हम बैठ सकते थे, लाइट के बिना कैसे बैठ सकते थे, हम कैसे काम कर सकते थे. इमेजिन व्हाट अ सर्विस वी एम गेटिंग. फोन, वाटर, वाईफाई. Replace every complaints of yours with lots and lots and lots of gratitude. Now, what you're going to do, the phenomenal power of gratitude, what it is. अगर कोई बिल आता है आपके पास, टेलीफोन का बिल आता है आपके पास, वाटर का बिल आता है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है आपके, या कोई आपने चीज खरीदी है उसका बिल आता है आपके पास और आप उसको पे कर देते हो, यू हैव पेड इट. जब आप पे कर रहे हो, चाहे वो चेक से कर रहे हो, चाहे वो कैश से करते हो, उसको देते टाइम भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड. आई लव यू. जहां जाओ आप बरकत करो.
उसको आपने ग्रेटिट्यूड देते हुए ही देना है, और बिल के पीछे लिख देना है थैंक यू पेड. यू हैव टू थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दैट अमाउंट टू यू. तो हर बिल पे, अब ये भी हो सकता है अब सब्जी वाले का तो बिल है नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं, आपने प्लेन पेपर लेना है, अपने हाथ से लिख देना है सब्जी खरीदी मैंने 140 रुपए की, लिख दो थैंक यू पेड एंड थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स कि आई हैव पेड द बिल. और उस सब्जी वाले को ग्रेटिट्यूड शो करना है. जब आप पैसा हाथ से दे रहे हो ना, मतलब आपके जिगर का टुकड़ा जा रहा है, आप उसको इतना ग्रेटिट्यूड भेजो, मल्टीपल टाइम से पैसा ना आए तो क्या. So whatever bill that is being paid, you will write down in that bill thank you paid. अब कुछ बिल्स आपके ऑनलाइन आते हैं, अगर आप ऑनलाइन वाले बिल को प्रिंट आउट निकाल सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते तो एक पेपर पे सर्विसेज सारी लिख लो, उसके साथ साथ कितना अमाउंट पे किया है, थैंक यू पेड, थैंक यू. यू हैव टू शो ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरी सर्विस दैट इज बीइंग गिवन टू यू. और कौन दे रहा है वो सर्विस, जो भी बंदा है उसको भी ग्रेटिट्यूड शो करो. एंड देन अगर कोई पे बिल करना है, आपने सपोज लोन ले रखा है, किसी से उधार ले रखा है, किसी बैंक को पे करना है, तो उसके पीछे लिख देना थैंक यू फॉर द मनी. दैट मीन्स यू आर टेलिंग द यूनिवर्स कि मुझे, अब आप यूनिवर्स को कह रही हो मुझे पैसा मिल गया, you are all, that means thank you for the money. वो अरेंज हो जाएगा, जैसे मर्जी हो वो होगा. डोंट हाउ मत सोचो, मनी पूछो वो अपने आप अरेंज होगा, हाउ मत सोचो. जितना हाउ सोचोगे ना उतना उसी घुमे में घूमते जाओगे. सो जस्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज टू बी पेड, वहां लिखना है आपने थैंक यू फॉर द मनी. अगर आपके पास फोन पे भी जैसे मैसेज आता है, उसका स्नैपशॉट खींचो और उसके ऊपर बड़ा लिख दो थैंक यू फॉर द मनी. एंड जब वो पे कर दिया गया उसके बाद उसके आगे लिख दो थैंक यू पेड. सो दिस इज द प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, यू आर गोइंग टू डू दिस. ऑलवेज रिमेंबर. एंड द मोर, सबसे बड़ी बात है प्यार, ग्रैटिट्यूड. फ्रेंड्स, you have to be remaining in these feelings and show lots of love and gratitude to your money. जो अगर आ रही है, चाहे सपोज कुछ अमाउंट आया है, सैलरी आई है, सैलरी का अमाउंट आपका 1 लाख है, 1 लाख में से आपके ऑफिस ने आपको 10,000 दिए हैं या 20,000 दिए हैं, शो द ग्रैटिट्यूड टू दैट. अरे इतने इतने कम दिए, अरे यार बाकी पैसे कहाँ गए. डोंट वरी, you have to show gratitude whatever you are receiving. उसको शो करोगे वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा more and it will be given more to you. So don't worry about it. Just show gratitude whatever you have in your lap. Okay, so video. I'm going to show you one video. This is a beautiful video. I loved it. मोनिका, एक चीज मेरे मतलब आई डोंट नो इफ इट्स एनीवेयर कनेक्टेड, बट ऐसी दिमाग में आ रही थी बार बार अभी कि यू नो इवन ऑल दैट वी सेल इन द मार्केट दैट इज सोल्ड, चाहे कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, कोई भी उठा लो, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर सेलिंग यू गुड फीलिंग्स बेसिकली. हाँ, लव, हैप्पीनेस, कोक वाला हैप्पीनेस बेच रहा है, हर कोई वही बेच रहा है. मतलब नोबडी इज सेलिंग देयर प्रोडक्ट, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एवरीबॉडी इज सेलिंग यू दैट इमोशन, दैट फीलिंग बेसिकली. Yeah. When you are buying something with that happiness mood you are buying ना, क्योंकि आप कहते हो कि मेरे को ये चाहिए, because that will give you happiness. So they are selling that joy and happiness to you to receive it as a joy and happiness and be in that mode of joy and happiness. Yeah. Thank you for sharing that. Yeah. Ma'am, I have a question. हाँ जी. सुजाता है. I know, तेरी आवाज हजारों में पहचानते हैं. बताओ. पहचान लिया. Yes. तो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि अगर हमें How many people Sorry, हाँ. अगर हमें पेड हो रहा होगा तो उसपे हम लोग क्या थैंक यू बोलेंगे?
क्या 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 हमें अगर हमें पेन हो रहा है तो हम उसको क्या थैंक यू बोलेंगे? पेन हो रहा है तो यस यस। बॉडी पेन, बॉडी पेन। बॉडी पेन हो रहा है, कहाँ पे पेन हो रहा है पहली बात तो ये देखो, ठीक है। एंड देन डोंट फोकस ऑन योर पेन, फोकस ऑन दैट एरिया एंड से यू आर सो हेल्दी, आई लव यू फॉर दिस। सपोज इट यू आर हैविंग पेन इन योर हैंड, ठीक है, तो कह रहे आई लव यू माई हैंड, आई लव यू, तेरे बिना मैं क्या करती, मैं ये भी नहीं उठा सकती थी, मैं ये भी नहीं उठा सकती थी, सो आई लव यू, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई लव यू, एंड यू आर सो हेल्दी एंड एक्टिव एंड फिट। बस उसी टाइम गायब होगा। ओके फाइन, ठीक है। थैंक यू। Thank you. Okay, so let us have this video. This is, I loved this video. कल लंबा हो गया था, नहीं तो मेरे को ये वीडियो कल दिखा। Actually believe in the idea that the way you think has some effect on your life. So how many people actually woke up this morning and consciously created a future? You know, the biggest reason why people don't do it is because you don't really believe it's true. You see, if you knew on a gut level that it was absolutely true, would you ever miss a day? And would you ever let any thought slip by your awareness that you didn't want to experience? So your brain, according to neuroscience, is organized to reflect everything you know in your life. Your brain is a record of your environment. It's a record, an artifact of your past. So if you believe this, then does your environment control your thinking, or does your thinking control your environment? So if you wake up in the morning and you get out of bed on the same exact side as you did the day before, you shut the alarm clock off with the same finger, you slip into your favorite slippers, you shuffle into the bathroom and you use the toilet like you always do, then you walk over to the mirror and you look at yourself to remember who you are, then you get into the shower and you wash yourself in the same routine way, then you groom yourself to look like everybody expects you to look, and you go downstairs and you drink coffee out of your favorite mug. Then you drive to work the same way as you did the day before. You see the same people that push the same emotional buttons. You do the exact thing that you know how to do and you memorize and can do so well that you're an expert at. Then you hurry up and rush home so you can hurry up and check your emails, so you can hurry up and go to bed, so you can hurry up and do it all over again. Now, here's my question. Did your brain change at all that day? We could say that you are thinking the same thoughts, performing the same actions, that create the same experiences, that produce the same emotions, but secretly expecting something to change in your life. So then, as the environment turns on different circuits in your brain, you begin to think equal to your environment. As you see the same people and go to the same places and do the same things at the same time, it's the external environment that's turning on different circuits in your brain, causing you to think equal to everything that you know. And as long as you think equal to everything that's familiar or known to you, what do you keep creating more of? Same life. Now, the quantum law is still applying to you. You're just thinking equal to everything that you know, and you keep creating more of the same. To change, to truly change, is to think greater than your environment. And every great person in history knew this. Whether it was William Wallace or Mahatma Gandhi or Martin Luther King or Queen Elizabeth I or Joan of Arc, they all had a vision. They all had an idea. Couldn't see it, couldn't smell it, couldn't taste it, couldn't feel it. But it was alive in their mind. It was so alive in their mind that they began to live as if that reality was actually happening now. So can you believe in a future that you can't see or experience with your senses yet, but you've thought about enough times in your mind that your brain is literally changed to look like the event has already happened? Neuroscience says it's absolutely possible. Now, your personality creates your personal reality. That's it. It's that simple. And your personality is made up of how you think, how you act, and how you feel. So the present personality who's sitting here today, you, has created the present personal reality called your life. Would you agree?
Would you also agree then, if you wanted to create a new personal reality, that on a fundamental level, you would have to change the thoughts that you are thinking, the behaviors and habits that you're demonstrating, and the emotions that you've memorized that's become part of your identity? And most people try to create a new personal reality as the same personality, and it never works. We have to become somebody else. So then, as you keep thinking the same thoughts, performing the same actions, and living by the same experiences that produce the same emotions, there's a principle in neuroscience that says nerve cells that fire together wire together. And if you keep repeating the same states of mind and body over and over again, your brain begins to fire in the same sequences, in the same patterns, and same combinations. And whenever you make your brain work in a certain way, that's called mind. Mind is the brain in action. So as you remind yourself every day who you think you are, you're causing your brain to fire in the exact same ways. And as they fire and wire in the same patterns over time, the brain moves into a very finite signature, and that's called your personality. Now, that box in your brain isn't literally a box, but it's the most commonly wired, neurologically fired programs that run redundantly because we keep doing the same things over and over again. To change your mind, then, is to make the brain work in new sequences and new patterns and new combinations, to begin to make the brain work differently. And the one ingredient that allows us to do that is knowledge or information. Because every time you learn something new, you make a new connection in your brain. That's what learning is. Learning is forging new connections. Remembering is maintaining or sustaining those connections. So now, every time you have a thought, you make a chemical. And if you have a great thought, or an unlimited thought, or a joyful thought, you turn on a set of circuits in your brain that fires in a very specific sequence, pattern, and combination that produces a level of mind that turns on another part of the brain that makes a chemical for you to begin to feel exactly the way you were just thinking, great or unlimited or joyful. Now, if you have a negative thought or an unhappy thought or a self-depreciating thought, you turn on a different set of circuits and a different combination, a different sequence, and a different pattern that produces a different level of mind. And the brain then begins to make a different batch of chemicals that signals the body for you to begin to feel exactly the way you were just thinking, negative or unhappy or unworthy. So the moment you begin to feel the way you think, because the brain is in constant communication with your body, you begin to think the way you feel, which makes more chemicals for you to feel the way you think. And then you think the way you feel, and then you feel the way you think, and then you think the way you feel. And some people do this for 20 or 30 or 40 years. Now, the redundancy of that cycle over time creates what I call a state of being. And a state of being is when your mind and body are working together, or your thoughts and feelings are aligned to a concept. So thoughts are the language of the brain, and feelings are the language of the body. And as people get caught in this cycle of thinking and feeling and feeling and thinking, over time, they condition their body to memorize that emotion as well as the conscious mind. And whenever the body knows as well as the mind, that's called a habit. A habit is when your body is the mind. Now, 95% of who you are by the time you're 35 years old is a set of memorized behaviors, set of emotional reactions, beliefs, perceptions, attitudes that run just like a computer program. So 5% of your conscious mind begins to work against 95% of what you've memorized. So the person wants to think positively, but they're feeling negatively. They want to create their dream board, and put up their future life, but they feel unworthy. That's mind and body in opposition. We have to recondition the body to a new mind. So how many people know someone who's memorized suffering? And you say to that person, hey, did you read the book I gave you? What do they say? No. Hey, listen, we're going to go out to dinner. We're going to go see some stand-up comedy. We're going to go for a walk along the water. You want to come? No. What do they say? I'm insisting on this neurochemical order that no person, no thing, no experience can move us from it.
And we have these three brains to allow us to move into a new state of being. And the quantum field, universal mind, whatever you want to call it, responds to who you're being. Not what you're thinking, not what you're feeling, but the combination of how you're thinking and how you're feeling, called a state of being. Now, most people wait for what? Crisis or trauma or disease or loss or diagnosis to really want to change. They wait to the point where the ego is brought to such a low level that they cannot go on business as usual any longer. That's when we begin to look at how we're thinking or what we believe or how we act or our attitude or what emotions we're living by. And my message is, why wait? We can learn and change in a state of pain and suffering, which tends to be the human model, or we can learn and change in a state of joy and inspiration. How many people actually believe in the idea So, कुछ समझ that आया? the way you मोनिका has एक मिनट इसको बंद कर दो, वीडियो आवाज आ रही है। how many people actually woke up this morning and यार what a beautiful video यार, it's just such a beautiful video, I can't tell you because मतलब इसको एक्सप्रेस कर पाना मुश्किल है actually, मतलब I have been there, so I know exactly. See, I mean, I'm sorry, but this opened up plethora of some sharing. Short में रखूंगा बहुत, Please. but I do want to share with everybody because it will benefit everybody. I'm pretty sure about that. Yeah. So first thing, हम वो जो उसने सबसे शुरू में बोला था कि विजन था उनके पास। अभी मैं और मेरा फ्रेंड भी डिस्कस कर रहे थे, किसी को डिप्रेशन क्यों होता है? When your future starts to show up as dark, when you start experiencing no vision in your life, you know, आप वही मोनिटर्स कर रहे हो, कोई विजन नहीं है, कोई जो आपको एक्साइटमेंट दे, कोई चीज नहीं है जो आपको वो करे, you start seeing your future as dark. The day you seeing that, आपको डिप्रेशन होना शुरू होता है। Now that's the starting of a depression. ठीक है, we were me and friend were discussing. ठीक है, उसके बाद जो है एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। So जो ये लूप की बात हो रही है, so मोनिका आपको तो आइडिया है, मैं सबके लिए भी शेयर कर देता हूँ। तो 8 साल पहले I had a very fantastic whatever love story, and you know, मेरे लिए तो जन्नू की कहानी थी, ठीक है, मैं लैंडमार्क से पहले बता रहा हूँ, and और उस स्टोरी के चक्कर में I obviously felt जिससे मैं मिला हूँ वो soulmate and everything happened and whatever, and I came back, whatever reasons I had to come back to India, she stayed back in London, and हमारी स्टोरी फ्लॉप मतलब नहीं कंटिन्यू हो पाई। अब उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे मेरे पे ऐसा होने लगा कि I started just thinking about her the whole time, so it has started happening कि 24 hours में से मैं 20 घंटे सोचा, तो you can understand, मुझे नहीं पता डिप्रेशन है क्या है, बट वो चल रहा था, और वो साइकिल में चाह कि मैं ये बता रहा हूँ, जो नेगेटिव इमोशंस की साइकिल शुरू होती है न्यूरोलॉजिकल, आप जो उसने बोला थिंक द वे आप थिंक कर रहे हो वही फील कर रहे हो, वही फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं वही सोच रहा हूँ, and that I remained in that for at least 3-4-5 months. If you start remaining in that, you know, भाई साहब, आप उस समय नहीं पता होता आप डिप्रेशन में चले गए, but actually start impacting everywhere in your head, ठीक है? And when then I'm not cutting the story short, then I came to Landmark, and through the process I learned one thing, और उसमें भी thank you आता है, ये मैं बताता हूँ। So एक चीज से मैंने उसको sort out किया, you know what? जब मैंने सीखा अपने एडवांस कोर्स में लैंडमार्क में, जब भी मेरे को वो मेमोरीज या वो पिक्चर्स वापस दिमाग क्रिएट करता रहता था मेरे लिए, वो जैसे ही वो क्रिएट करता था मैं दिमाग को बोलता था थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस, बट आई डोंट नीड देम राइट नाउ, और दिमाग को वहां से शिफ्ट करता था, डाइवर्ट करता था, क्योंकि और चीज में जाता था। स्लोली वो थैंक यू कर करके ब्रेन को ही कि भाई थैंक यू तूने पिक्चर शेयर करी बट मेरे को चाहिए नहीं, थैंक यू तूने पिक्चर शेयर करी मुझे चाहिए नहीं, कर करके मैंने अपने ब्रेन को वापस से पूरा you know rewire किया to become normal or as a normal human being should be in a positive. So I mean I'm just sharing gratitude कैसे function करता है, plus कैसे हमारा neurological पूरा order जो thinking और feeling का है वो पूरी transform कर सकता है हमारा experience of living a life. And sorry but if I'm going too fast, but Monica, you remember आज से 1 महीना पहले we had a conversation कि यार मेरे दिमाग में इतना फियर बैठ गया पेन को लेके कि जैसे होता है, याद है वो बॉडी मेरी कांपने लगती है, बताया मैं प्रेजेंट है ना, मैं प्रेजेंट हो रहा हूँ अब कि यार लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरी बॉडी के रिएक्शंस अजीब से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, है ना। और आपने बोला था पानी को थैंक यू करो, आज किसी से बात करोगे, कल पानी की बात हुई गई है, पानी को थैंक यू करना है और यू नो अपने आप को थैंक करना है। आज बिलीव करोगे आज मुझे कुछ फियर नहीं है, 1 महीना हुआ वो उस बात को, मुश्किल से हमारी आपकी
और मैं तब कह रहा था कितना पैनिक, मेरी बॉडी पैनिक अटैक में आ जाती थी, मैं तो ठीक था यार, मैं तो मेंटली देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, अजीब से रिएक्शंस हो रहे हैं। सिर्फ with gratitude, with giving gratitude to the water I was drinking, you know, कि that is healing me, or with gratitude I actually transformed that experience. आज की डेट पे ना मेरे को डर आता उस तरह का, ना कोई पैनिक अटैक। Just, you know, letting you know कि letting everybody know that how you can transform, you know, your thinking and your feeling and change that from negative to positive, you know, with, let's say, gratitude or with a lot of other experiences in that. बस ये शेयर करने का एकदम से बवाल आ गया, बता आपको वीडियो सुनते थे सारा मेरी शेयर एकदम से दिमाग में निकलती आ गई, तो मैंने शेयर कर। Yes, because this was a very powerful video, you know, actually what happens, you know, और आधे लोगों को अपना वो state of being change करने में प्रॉब्लम है यार, कैसे करें? And मैंने कितने % लोगों को ये देखा है कि वो क्या करते हैं कि they want to, you know, sympathetic life, कि ये मेरे को sympathize करे, उनको ये नहीं समझ आता वो sympathize नहीं होता है। दूसरे लोग कहते हैं यार ये तो हमेशा नेगेटिव है, नेगेटिव कॉर्नर में खड़े रहते हैं और नेगेटिव ही बोलते रहते हैं। जस्ट सी योर लाइफ, यू आर गेटिंग एवरी डे, यू आर गेटिंग वन टेक्निक, just try to change the state of being. Why you can't be happy? You have got full right to be happy, you have got full right to do everything. The only thing is बेचारा बनना बंद कर दो यार। किसके लिए बेचारा? क्यों? भगवान ने आपको जो दिया ना, बहुत कुछ दिया है। Just look at the people, those who don't have anything. You have so much, you know. So that does, मतलब दूसरों की लाइफ क्यों देखनी, अपनी लाइफ देखो। And when you change your state of being, automatically आपका environment भी change होगा, आपके आसपास भी लोग change होंगे। Don't try to change them. When you change your state of being, they will also change your state of being. When you are in joy, they will also become in joy state. So please do that. You know, it's a brain pattern. वो देखो वो जो कैट थी, मतलब वो जो इतनी क्यूट सी कैट थी, उसकी शक्ल देख, मतलब it is so amazing. So let us create our state of being, you know, that joyful, you know. Let's do that, you know. And there कोई rocket science नहीं है। Rocket science ये है कि अपने आप को बेचारा बनाना बंद कर दो। You are amazing. Hello, hi ma'am, this is Guneet. Yes, Guneet. Ma'am, I just want to say that there are things that I've been going through for a while, and I'm not 100% sure whether I'm in a depression or not. It feels like it sometimes, but for me, it's like whenever I try to write, whether it's gratitude, whether it's dream, anything, my hands don't move. I just keep staring at my diary and I can't write anything. I'm blank. I know I can think, I have in my mind what I'm grateful for, what my dreams are, but I just can't write them. पहली बात तो ये सोचना छोड़ दो कि I can't write. मम्मा, Yes. इतना नहीं आ रही। एक तो ये तेरा बेटा बहुत प्यारा सा है यार। Ma'am, she's a girl. It's a girl. You know, मेरे तो I'm girl. Yeah, you're right. कुट्टी पाई। So just stop. पहली बात देखो, कुछ अभी ये जो वीडियो है ना, वीडियो ने सब कुछ बता दिया है। कुछ मोमेंट होता है, कुछ होता है, उसको पकड़े। दैट इज योर लिमिटिंग बिलीफ। अनमोल का ये पिछले महीने जो पिछले सेशन में तो इसका था, तो मैंने इसको ये बताया था, बेटा तो ऐसे 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 कर लो। तो ही डिड दैट। ही इज आउट ऑफ एवरीथिंग, यू नो। उस एक महीने के बाद आज ये नाचता हुआ, मतलब नाचता हुआ सारा दिन नाचता गाता हुआ जाता है। सड़क पे लोग इसको देख के कहते हैं हो गया भाई साहब जी को। That's wonderful. So you have to stop thinking कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। You प्यार करना, जैसे तेरे को लगे बंद कर गया काम करना, वो तेरा दिमाग बंद हो जाता है काम करने, इसलिए वो हाथ नहीं चलता है। उसको अपने हाथ को इतना प्यार कर, तू 100 काम करेगी, 100 काम करेगा। Yes, ma'am. ठीक है? Yes, thank you. Thank you. Bless you. सॉरी, इशनीत को वो तो बता दो वाटर वाली टेक्निक यार, उससे तो बहुत हेल्प मिली। कल बताई थी मैंने इनको। अच्छा बता दी, हीलिंग वाली। हाँ, है ना, वाटर से प्रोग्रामिंग मैंने कल बताया था, सब कुछ बताया। ओके ठीक है। We have been practicing that through Reiki also. Do that. मैं आपको we have been doing it through Reiki also. First week was just to introduce what gratitude is. कल मंडे था, 8th डे था, आज 9th डे है।
रोज एक टेक्निक सीखोगे और रोज उसको प्रैक्टिस में डाल दोगे बस, और बाय एंड ऑफ वीक तुम इतने पावरफुल बन जाओगे, इतने पावरफुल, यू विल बिकम अ मैजिशियन, आई एम टेलिंग यू। और अभी आप भागना शुरू हो गए हो, सो प्लीज गेट सेट गो। वो ट्रैक Yes, sorry to interrupt. I've been doing my assignments religiously. I don't sleep before completing it. Good. Yes, That is even okay. if I'm sleeping at 2 in the morning, I will complete my assignments first. I will write all my blessings, all my dreams, and then only I will sleep. Great. So this is the way it has to move on, you know. अब कल से मैंने आपको बताया कि फूड लेने से पहले आप करोगे, ठीक है? और एक मैजिक डस्ट का बताया था, यू डू दोज थिंग्स, ठीक है? जो तेरा हाथ काम नहीं करता ना, उसको मैजिक डस्ट डाल दे, इट विल वर्क, उसी टाइम काम करेगा, उसी टाइम, ठीक है? उसके बाद अब खाने के लिए हो गया, बिकॉज व्हेन यू आर ईटिंग यू आर टेकिंग ऑल ग्रेटिट्यूड फूड इन योर बॉडी, तो आपका ईच एंड एवरी सेल इज बीइंग टेकन केयर, ठीक है? पानी पी रहे हो, पानी को प्रोग्राम करके पियोगे, ऑटोमेटिकली योर होल बॉडी इज 70% वाटर, वाओ, तो यू आर ब्लेसिंग ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, तो आप हेल्दी रहोगे। पहला पॉइंट, कल पहला था लेसन, आज सेकेंड लेसन जा रहा है मनी का, विच इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट, अभी मैं आगे बढ़ने जा रही हूँ। तो अब ये चीजें जो आज से शुरू, कल से शुरू हुई हैं, ये रोज की प्रैक्टिस है, रोज की, और कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कितना जो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इतना नहीं लगेगा, ठीक है? हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैं ना जब भी मतलब मैं सेशन अटेंड करती हूँ तो मुझे एक अलग ही एनर्जी फील होती है। हाँ। और पूरा का पूरा मतलब माइंड का वो चेंज हो जाता है पूरा। हाँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस थैंक यू सेशन। सुजाता, तो आ जाती है, मेरे को वैसे ही मजे आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुजाता। और सुजाता मेरे पिछले सेशन से है और हर बार ये कुछ नया नया, और इसने ऑलरेडी 4-5 बार किताब पढ़ चुकी है, उतने ही एंथुसियास्टिकली पढ़ती है, उतना ही नया सीखती है, उतना ही पार्टिसिपेट करती है, दैट इज व्हाई आई लव हर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सुजाता। Awesome. What consumes your mind controls your life, और आप जो जो भी अपने माइंड में डालोगे वही आपका लाइफ का कंट्रोल है, so everything is in your control, so practice gratitude। अच्छा जी, अब एक्टिविटी आ गई। आज पूरे दिन में 3 ऐसी बिल्स ढूंढो या 3 ऐसे एक्टिविटी ढूंढो जहां आपने पैसे दिए थे, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो प्रेस वाला हो, चाहे किसी का बिल पे किया हो, किसी का कुछ किया हो, 3 ऐसी चीजें ढूंढो जहां आपने पैसे दिए हैं, और आंख बंद करके यू विल से थैंक्स पेड, थैंक्स पेड। और 3 जो पेमेंट अभी करनी है इस महीने, अब आपने इस महीने या अगले महीने 3 पेमेंट आपने जो करनी है वो दिमाग में रखो, और उसको लिखोगे थैंक्स फॉर द मनी, यानी कि 3 बिल्स जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उसके लिए लिखोगे थैंक यू पेड। सब्जी वाले का 150 रुपए, उसको विजुअलाइज करो, सब्जी वाले को देखो, उसको बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड उसके माइंड में रख के बिल अपने कॉपी पे लिखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 150 रुपीज, आगे लिखो थैंक्स थैंक यू पेड, और उसको विजुअलाइज करो जिसको दिए, और उसको ग्रेटिट्यूड शो करो, थैंक यू फॉर गिविंग दैट सर्विस टू मी। उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है आपने, 3 ऐसी चीजें जिसको आपने किसी को कोई पैसे लिए रखे उसको देने हैं, चाहे बड़ा अमाउंट है चाहे छोटा अमाउंट है, चाहे लोन का पेमेंट करना है, वो 3 चीजें इस महीने की देखो, और उसके अंदर उसको सामने अपने कॉपी में लिख के कि इतना अमाउंट इसका देना है, मतलब लिखना नहीं है देना है, वो बंदे का नाम या बैंक का नाम, और इतना अमाउंट आगे लिखो, थैंक यू फॉर द मनी यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। 3 फटाफट लिखो ये। So this is the activity that you have to do. मैडम किसे पैसा आना है तो? हाँ, किसे पैसा आना है तो? किसी से पैसा आना है तो वो उसका अभी इसमें नहीं डालोगे, उसका मैं अलग तरीका बताऊंगी, वो इसमें नहीं डालोगे, but you have to show gratitude to that person, lots and lots of gratitude to that person, that's it। कुछ नहीं, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी उसके पास से,
कुछ कंप्लेंट नहीं करोगे कि उसने मेरा पैसा नहीं दिया, वो खा गया, वो पी गया, उड़ गया, मेरे को धोखा दे दिया, मुझे ये कर दिया, कुछ नहीं बोलोगे उसके बारे में। बट आपको उस बंदे का नाम लिखना है और 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं उसके बारे में कि ही इज सो गुड, ही इज सो कमिटेड, ही शेयर्स एवरीथिंग विद मी। आप उसके जो जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉजिटिव जो चीजें, वो सब चीजें उसको ग्रेटिट्यूड शो करोगे और रोज करोगे उसको। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपने। जी अभी लिखना है मैम? हाँ अभी लिखना है ये? हाँ बिल्कुल। 3, ये अभी एक की एक्टिविटी है, क्लास की एक्टिविटी है। 3 बिल्स देखो और उसके आगे थैंक यू पेड कर दो, और 3 पेमेंट जो आपने देनी है उसको लिखोगे थैंक यू फॉर द मनी। ये अभी सेशन की एक्टिविटी है। मैम विक्रम। हाँ जी मैम, अगर गाड़ी में सुबह मॉर्निंग में डीजल भरवाया है हाँ कार्ड से, हाँ और मैंने कार्ड स्वाइप किया, रिसिप्ट आ गई मेरे पास, और एक उसकी रिसिप्ट जो आई, मैंने उस रिसिप्ट के पीछे थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख दिया। ये थैंक यू पेड, बस थैंक यू पेड, दैट्स इट, टाइम। और जिस पेट्रोल से बनवाया था उसको थैंक यू ग्रेटिट्यूड शो कर देना। दैट्स इट नाउ। और जो ये 3 वाले जो बताए इंस्टॉलमेंट टू बी पेड, ये जो भी अमाउंट है, ये अमाउंट भी मेंशन करना है? हाँ वही आप लिखोगे। जैसे बैंक लोन है, जैसे मेरी कार का लोन जाता है हर महीने, जाता है 14,000 रुपए जो भी आता ठीक है, तो ठीक है बैंक मैम, लोन 14,000 समथिंग समथिंग, थैंक यू फॉर द मनी। गॉट इट, गॉट इट, गॉट। अगर आपके पास बिल्स नहीं है, सपोज बिल्स नहीं है आपके पास, ऑनलाइन है, कुछ है, तो आप अपने पेपर पे, एक पेपर पे छोटा सा बिल बना लो ना, अपने हाथ से बना लो, बट आपके माइंड में तो है ना कि ये उसका बिल है। और जो खरीदा है, ये तो बिल जैसे डीजल वाज कि मैंने खरीदा, इफ आई बॉट सम गैजेट, जैसे मैंने हाँ आईफोन। गैजेट ही है तो गैजेट के अमाउंट लिख के थैंक यू पेड। कुछ भी खरीदोगे, मतलब आपके जेब से एक भी पैसा जाएगा, उसको थैंक यू पेड करोगे। ठीक है मैम, गॉट इट। Done. If you have done, just write it down that you have done. Hi Monica, this is Dhwani here. Yeah, Dhwani. Yes. अच्छा, अभी ये जो installment to be paid है, it is not actually installment, it is a kind of expense. Suppose मेरा थोड़ा carpenter का काम है, so I don't know exactly what that guy would be charging. So is it okay if I don't write any amount for that? नहीं तो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? अमाउंट पेड टू बी पेड टू द कारपेंटर लिख दो बस। मतलब उसमें पैसे की अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है ना, जस्ट हाँ हाँ वो आप, क्योंकि अभी आपको भी नहीं पता ना, बट इट हैज टू बी पेड ना। हाँ, अमाउंट फॉर द कारपेंटर टू बी पेड, जैसे जो भी कारपेंटर अमाउंट, उसके आगे लिख दो थैंक यू फॉर द मनी। या ओके, थैंक यू। वैसे अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक है तो लिख दो, ताकि हो सकता है वो उतने ही पैसे लेगा फिर। Okay, maybe so my expense won't go beyond that. That's why. हाँ हाँ. Okay, okay, yeah. So you're telling the universe that these are the money that needs to be towards me, so it will be towards you then. Yeah, got it. Yeah, thank you. Thank you. So Nitesh has done, Yatesh has done, Savita has done, Vimi has done. Most of the beings are paid by online. It is absolutely fine, but in your copy at least you can write it down. You know what are the bills that are paid, you know. कईयों के ऑफिस में ऑलरेडी ऑनलाइन आता है, ऑफिस से पे हो जाता है, बट आपको पता तो होगा ना कौन कौन सी जगह पे पे हो रहा है बिल। यस नीतू, डन। ओके 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 ओके।
Anjana done, Ishneet done. Okay, most of you have done. Great, great, great. So, feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. That is for sure. You will receive more. So, the more gratitude you show, whenever आपकी जेब से जो पैसा आना है उसको भी आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, जो पैसा जा रहा है चला गया उसको भी ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो. सो प्लीज आज से अपना ये गांठ बांध लो. व्हेनेवर यू आर पेइंग टू समवन, शो ग्रेटिट्यूड. जैसे मैम हेलो, जैसे आई एम पेइंग द मनी टू माय फिजियोथेरेपिस्ट. आई वाज पेइंग, अभी तो लॉकडाउन की वजह से एक्सरसाइजेस वो थोड़ी रुक गई हैं, बट जैसे आई वाज पेइंग हिम मतलब lot of money to the physiotherapist, so I have to say thanks for that. Who's this? Sorry. Hello. हाँ. Ma'am, जैसे I am paying the money to my physiotherapist. Every month I pay him a lot of amount, more than 10,000, 16,000. तो उसके लिए भी मुझे gratitude show करना है. Yes, thank you so much. Thank you so much. He is giving you a service. आपकी हेल्थ ठीक कर रही है. It is so important. ठीक है. And never ever think about मैं उसको इतना heavy पे कर रही हूँ 16,000. वो सोचो है क्यों हम ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं कि हम उसको इतना पे कर रहे हैं. प्लीज, she is giving you a service. आपको जिंदगी दे रही है वो. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Done, ma'am. Done. Lots of gratitude you need to show her. वो आप बिल्कुल ठीक कर रही है आपको. आप whatever amount of money, you know, खुशी से दो, मल्टीप्लाई होकर खुशी से आपके पास वापस आएगा. ठीक है मैम. That is why you have to show lots of gratitude to the people who are giving you the service, whatsoever they are charging. Right, ma'am. Right. ठीक है. ठीक. हाँ जी मैम. हाँ जी. Great. Thank you so much. Now one more thing which I would like to share कि हमने अपने ड्रीम्स लिखे थे, सबने ड्रीम्स लिखे थे कि मैम आपको हमको रोज करना है ये. थैंक यू. यस, आप कोई भी बिल पे करोगे, कहीं भी पे करोगे, आप उसको थैंक यू पेड करोगे. जो पैसा नहीं है उसके लिए भी रोज करना है. पैसा नहीं है मतलब सो बिल पेंडिंग है वो रोज करना है अपने को. जो पेंडिंग है थैंक यू फॉर द मनी. हाँ ओके. नहीं, जो आप देखो ये तो अभी एक प्रैक्टिस अभी ये आपकी हो गई. ठीक है. आप इसको रोज करोगे तो बहुत अच्छी बात है. अगर जो पे कर रहे हो ना उसको तो थैंक यू वो तो कर रही है. वो तो कर रही है. हाँ, वो तो करना ही है. बिल्कुल बिल्कुल. हेलो मैम, मुझे ना ये पूछना था, जैसे कि हमने लिखा है ना कि अगले महीने हमें क्या पे करना है. हाँ, तो उसमें हम लोग प्रेजेंट में लिखेंगे या फ्यूचर में लिखेंगे? मतलब थैंक यू फॉर द मनी लिखना है बस. पेड नहीं, जो पे करना है हमने थैंक यू फॉर द मनी, दैट्स इट. थैंक यू फॉर द मनी और कुछ नहीं. वो आप पे करोगे, आपके जेब में पैसे हैं नहीं है वो मैं बोल नहीं रही हूँ, बट जो आप पे कर चुके हो पास्ट हो गया, उसका थैंक यू पेड कर दिया है. ठीक है. और आगे दिन में कुछ सब्जी खरीद रहे हो, फ्रूट्स खरीद रहे हो, डीजल खरीद रहे हो, तो आपने जब उसको पे करना है उस बंदे को ग्रेटिट्यूड शो करना है और स्वाइप करने के बाद लिखना है थैंक यू पेड. दैट्स इट. और जो मतलब कि जो हमें नेक्स्ट मंथ का लिखना है उसमें मतलब उसमें थैंक यू फॉर द मनी. हाँ, उसको उस चीज का नाम लिख देंगे. हाँ, यस, नाउ यू गॉट इट. हम इसमें हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे जो चीज मुझे लेनी है तो मैं उस चीज के लिए लिख दूंगी और फिर मैं उसका लिख दूंगी थैंक यू फॉर द मनी. बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. ओके फाइन, बिल्कुल कर सकते हो. ओके, सो दिस इज योर ड्रीम जो आप लिख रहे हो. ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन यू आर राइटिंग अ ड्रीम you will say thank you, thank you, thank you. I am so happy and grateful that my dream or my goal whatever has manifested easily, date डाल के या time डाल के by the great blessings of God and universe. जो भी आप ड्रीम लिख रहे हो वो कम से कम 3 बार लिखना है और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपने 5 तरीके होते हैं. और वो क्या होता है कि उनकी या तो एफर्मेशंस लिखोगे. एफर्मेशंस का मतलब होता है कि first of all it starts with I, and the second is that is the positive thought that you need to put,
एंड देन प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि आई एम गेटिंग दिस, आई एम अर्निंग 10 lakhs a month regularly. So you are, and you need to repeat it again and again. अच्छा, there is a difference between a dream and a affirmation. Affirmation क्यों करते हैं? क्योंकि ये हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हो, तो उसको हम affirmations के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? So that is why I करते हैं, I am getting this, I am having this, I am receiving this, I am earning this. So that way. And एक तो आप affirmation के रूप में उसकी प्रैक्टिस करते हो, दूसरा बोल के थैंक यू, जैसे योर विश, जैसे बार बार बोल के, उसको बोल के सुन के, फर्स्ट आपने लिखा, फिर आपने उसको पढ़ा, एंड देन यू सेड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दूसरा एफर्मेशंस की फॉर्म में, तीसरा उनको सुनने की फॉर्म में। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करके कान में लगाते हैं, कान में उसके थीटा वेव्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी कि किस तरह से करना है। एंड देन विजुअलाइजेशन का मतलब है आप उसका माइंड मैप भी बना सकते हैं, विजुअल बोर्ड भी बना सकते हैं, विजन बोर्ड भी बना सकते हैं कि मुझे ये चीजें चाहिए, उनकी फोटोग्राफ इकट्ठी करके एक बोर्ड बना के रख सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये मॉडल चाहिए, ये कलर चाहिए, इस तरह से। सो दैट वे यू कैन डू इट एंड यू कैन विजुअलाइज इन द माइंड ऑल्सो कि इट इज हैपनिंग। सो दिस इज अ माइंड मैप दैट नीड्स टू बी क्रिएटेड, कि आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है बीच के अंदर। दिस इज अ माइंड मैप दैट यू नीड टू क्रिएट, या बीच में अपना नाम लिखना है, और फिर उसकी जो एक ये लाइन जा रही है, यहाँ पे ये जो लाइन है, सपोज आपके बिजनेस की लाइन है, वर्क की लाइन है, जिसकी भी लाइन है, यानी कि वर्क एरिया लिखना है यहाँ पे, दिस इज योर वर्क एरिया और योर बिजनेस एरिया और व्हाटसएवर इट इज। दिस लाइन गोज फॉर द रिलेशनशिप, this line goes for your health, and this line goes for any other wish you would like to have. एक माइंड मैप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको बीच में आपको अपना नाम लिखना है, देन यू नीड टू, ये जो अगर सर्कल बनाया है, जो अगला आप पोर्शन बनाओगे दैट शुड बी ऑफ डिफरेंट शेप, इट शुड नॉट बी द सेम सर्कल शेप और ओवल शेप, इधर ट्राइंगल बना दो, स्क्वायर बना दो, रेक्टेंगल बना दो। अब आपका बिजनेस का है, तो आप अपने बिजनेस में आपका क्या एरिया है, बिजनेस में सपोज आई वांट टू अर्न 10 करोड़ रुपीज, तो यहाँ पे लिख लो बिजनेस टू अर्न 10 करोड़ रुपीज। आप इसके बाद अगेन इसके आगे और इसके रूट्स बनाओगे कि कौन सी डेट पे, कब, क्या, तो इसको आप इस तरह से बना सकते हो। जैसे ये देखो पीछे जो एक माइंड मैप बना हुआ है, एक गलती इसके अंदर ये है कि इन्होंने सिर्फ ये लाइंस बना रखी है, विच इज नॉट करेक्ट। माइंड मैप इज लाइक बीच के अंदर आपका सर्कल आता है, देन इसके ब्रांचेस आते हैं, देन अ डिफरेंट शेप ऑफ द एरिया, डिफरेंट शेप ऑफ द एरिया, इस तरह से। अब मैं 1 मिनट आपको वो दिखाती हूँ। अगर मैं ये देखो, ये हटा देती हूँ मैं सपोज, तो इन्होंने जो बनाया है वो ये बनाया है। दीपा में क्लासेस हो रहे हैं, मेरे को क्या पता होगा। I'll just share it with you once again so that you can now see। तो इसको अगर मैं बड़ा करती हूँ तो इसमें देखो, इसमें ना ये दे रखा है कि जस्ट इफ यू जूम इट, बंदे का नाम लिखा है एंड तो आप ये देखो, ये मटेरियलिस्ट चीजें चाहिए इसको, और ये इसको रिलेशनशिप में चाहिए इसको, और एक हेल्थ और एक करियर। सो माइंड मैप होता है कि सेंटर में आपका नाम आएगा, एक तरफ आएगा हेल्थ, एक तरफ आपका रिलेशनशिप, एक तरफ आपकी मेटेरियलिस्टिक चीजें, एक तरफ आपका कुछ और जो आप चाहना चाहते हो, और उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कि आप क्या चाहते हो, बेसिकली कि व्हाट यू वांट, कौन सा कलर, क्या चीज, वो चीज आती है। ठीक है जी।
So this is what it is like. आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो अपने लिए माइंड मैप. That is the way it is. Great. Anybody has anything to तो ask? मैम आपने जो हमें बताया है, जो शेप बनानी है हमें ब्रांचेस से कनेक्ट करके, तो सब कुछ उसी में लिखना है कि अलग से भी लिख सकते हैं? आप अलग से भी लिख सकते हो, बट ये थोड़ा सा, it is a map which is showing your, It's like brain means. हाँ, क्योंकि हाँ, तो मैम हमें उसी तरीके से बनाना है. हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे ये सर्कल है, इसके बाद इन्होंने ब्लू कलर से बनाया, दोबारा ये लाइंस बना दी. लाइंस नहीं बनानी है, ये लाइन के साथ देयर हैज टू हैव सम अदर शेप व्हिच शोज कि भाई सपोज ये है मटेरियलिस्टिक चीजें, तो आप बोलोगे ये मेरे जो चीजें मेरी पर्सनल है और ये मेरी प्रोफेशनल के अंदर दोनों चीजें हो सकती है मटेरियलिस्टिक चीजें, तो पर्सनल का सर्कल बन गया, नेक्स्ट ट्रायंगल बन गया, उसके आगे एक्सप्लेनेशन कर सकते हो. उसमें तो मैम करियर वाला ऑप्शन तो अलग से लिखा हुआ है, इसमें हम लोग अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं. हमें अलग सी शेप में जो हम बना रहे हैं उसमें हमने लिखना है अपनी बात. आपने अलग शेप में वो लिख के देन यू कैन पुट इन डिफरेंट ब्रांचेस, उसके रूट्स बना सकते हो कि इसका ये कलर हो, इसका ये कलर हो. बेसिकली सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप डिफरेंट शेप बना के इस एरिया का नाम लिखो एंड देन यू कैन डू द डिफरेंट ब्रांचेस और डिफरेंट रूट्स यू कैन क्रिएट ओवर. ठीक है? Okay. So anybody has to say anything? ये मैं कल का ये असाइनमेंट पढ़ देती हूँ, मैंने बुक से नहीं पढ़ा, मैंने कहा कि चलो अब आपसे शेयर कर देती हूँ. ऑलरेडी. हेलो मैम. हाँ जी. आई एम सॉरी, मैं ना रिलेशनशिप्स के बारे में एक क्वेश्चन छोटी सी पूछना चाहती हूँ. पूछिए, आपको पूरा हक है पूछने का, पूछो. हाँ, वो मैंने कभी ये मैनिफेस्ट किया नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक सोचा नहीं है कि हाउ इज द आइडियल थिंग गोइंग टू हैपन. पर आज मेरी मम्मी ने ना आपका सेशन अटेंड किया और मैंने खूब ट्राई किया समझाने का, एंड शी हैज कम टू वन पॉइंट कि चलो करते हैं. तो आज मेरी मम्मी पूछ रही थी कि हाउ कैन शी शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मी गेटिंग टू गेट a good match and all, कि वो पक्की हो जाए और अच्छी भी हो. तो मैंने तो मम्मी से यही बोला है कि आज तक जितने भी मैचेस देखने के लिए आए हैं कोई भी, so we have to show gratitude towards all those incidents that have taken place, to all the efforts that we have put in forth. जो भी मेरे मम्मी पापा हमेशा जाके उनको बुलाना एंड ऑल, whatever has happened till date, उसको ग्रेटिट्यूड शो करेंगे तो सही बंदा जो भी है मतलब आएगा, अच्छी मैचेस जो है आना शुरू हो जाएंगी. तो इसमें आपको आपका राय भी जानना है. व्हाट इज योर राय? ये है, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है. व्हेन वी आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, यू नो, अगर आपने रागेश्वरी की वीडियो देखी थी, उससे बोला था कि मैंने अपना हैंडसम हस्बैंड ऐसे ही क्रिएट किया था, राइट? है ना? So the first and foremost thing, those who have come to your place to see you, और किसी के पास है, तो जो आपके पास है उसको ग्रेटिट्यूड शो करना है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग, जो इनिशिएटिव लेके वो आया, जो भी, उसको ग्रेटिट्यूड शो करना है. ठीक है? दूसरा, आप अपने ड्रीम के जो आपकी जो ड्रीम है उसके अंदर स्पेसिफाई करो व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड यू वांट. ओके. Thank you, thank you, thank you. I am so blessed and grateful to God and universe for giving me handsome, compatible, understanding, जो भी आप चाहते हो, life partner in my life partner. बस ये इस तरह का, अगर जो basically what kind of husband you want, that is the most important thing. So you will put into that dream and start writing every day and show gratitude to this. That's it. मैडम, पर लेकिन मैंने खुद कभी स्टार्ट किया नहीं है ना अब तक, मेरे को अभी टाइम लगेगा करने में. अपने ड्रीम में ही लिखो मैम, पर लेकिन मेरे को टाइम लगेगा करने में. मतलब एक लाइन लिखने में टाइम लगेगा? नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ अभी लिखने को. So you don't want a partner? I want it, but अभी टाइम नहीं, अभी मैं इतना एफर्ट नहीं कर सकती लिखने का. तो फिर अभी मैनिफेस्ट करने का मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो मम्मी को कैसे, हाउ डू आई आस्क माय मॉम टू डू वो?
समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ही Actually, समझ नहीं समझ नहीं आया। आया। मेरे का क्वेश्चन मैं कह रही हूँ कि मेरे को तो चाहिए, पर लेकिन मेरे को अभी ये जो अभी ऑफिस का काम और सब कुछ चल रहा है डेली टू डेली, मेरे को उस पे फोकस करना है, इसलिए मेरा गोल कुछ और है। So और that's अभी fine. But पार्टनर का आपके काम से क्या लेना देना है? अगर वो compatible पार्टनर होगा, he will understand that you are busy with your work. उससे इसका क्या लेना देना है? ओके I mean, मैं तो रागेश्वरी आंटी का जो डायलॉग अभी तक याद है, देख मोनिका, That थैंक is यू what डियर I'm यूनिवर्स saying. फॉर, अरे देख मैं रोज बोलता हूँ थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द परफेक्ट पार्टनर who क्या कहते हैं, who nurtures me physically, emotionally, mentally and spiritually. मुझे इतनी बढ़िया लाइन लगती है ना यार, मैं क्या बोलूं। अरे ये तो बहुत तेजस्विनी ही जब अच्छा है। याद आए तब बोलते रहे यार, मैं तो ये जब याद आता सभी के लिए बहुत अच्छा है। ना उन्होंने परफेक्ट लाइन पकड़ ली है। Exactly, मैंने सेम यही line ली। मैंने रट ली है, पकड़ने की रट ली है। मेरे को जब दिन में याद आता है, मैं तब बस जब तेजस्विनी जब दिमाग में याद आए ना, तब उसको याद कर, 1 मिनट आंख बंद कर, थैंक यू बोल, बस। और कुछ नहीं करना है तूने, तूने कौन सी उस पर कुछ मेहनत कर। ठीक है। अगर वो भगवान जी बोलेंगे compatible है, हाँ देखो, तो तेजस्विनी, है ना। डोंट हाँ। अपने के मदर को समझाऊं क्या समझाऊं वो मत बोलो। यू हैव हाँ टू राइट, दिस इज योर ड्रीम एंड यू वांट इट। तो ठीक अब है। आपको आप ये यू स्टार्ट डूइंग इट, वो कंपैटिबल है, ही विल अंडरस्टैंड कि व्हाट वर्क। हो सकता है तेरा पार्टनर ही तेरी हेल्प कर दे कि भैया तेरे को मैं आगे बढ़ने के लिए मैं ही तेरी हेल्प करता हूँ, यू नेवर नो। ठीक है जी जी ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। सबकी भावनाओं को जगा दिया यहाँ सारे जितने बैठे। सॉरी। ऑल द बैचलर्स आउट हियर। All the bachelors out here. Good नहीं, यू question. नेवर नो, किस मैरिड वाले का भी दिल मचल रहा हो, यू नेवर नो। Oh my कोई बोले ना बोले, I'm किसका not दिल sure. मचल रहा हो। This was wrong. Okay, great. So today's assignment is you will write down 10 blessings. That is, you are going to do it in the morning. Then magnet money practice क्या करनी है, आप सब सुन लो ध्यान से। 10 unpaid bill, 10 unpaid bill यानी कि जो आपने पे नहीं किए हुए हैं अभी तक, वहां लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, ठीक है। और 10 पेड जो पहले कर चुके पिछले 6 महीने में, 10 पेड बिल इकट्ठे करो, उसके अंदर लिखोगे थैंक यू पेड। चाहे वो सब्जी वाला का हो, चाहे किसी चीज का भी हो, 10 बिल इकट्ठे करने हैं आपने और उसके ऊपर थैंक यू पेड करना है, उसकी स्नैपशॉट खींच के मुझे भेजनी है। मैम अगर अनपेड बिल्स है नहीं अभी तो? अनपेड बिल्स है नहीं अभी तो कोई नहीं। बात नहीं, फिर अनपेड कुछ तो होगा जो नहीं आगे मैम। में तो ये कुछ खरीदना होगा। नहीं मैम, अनपेड नहीं है। बहुत शुक्राना इस चीज का, अनपेड नहीं तो जो चीजें खरीदनी है हमें, तो जैसे कि एप्पल लैपटॉप, तो उसके लिए लिख देंगे थैंक यू फॉर द मनी। हाँ, ये कर सकते हैं ना कि खरीदनी है, मुझे पता है 2-3 चीजें। हाँ बस तो वही यार तो करना सुजाता, ये है। एप्पल लैपटॉप यार तूने सही याद दिलाया, मेरे पे यही सोच रहा था, मेरे को कुछ है नहीं भाई, कसम से अब चाहिए, मेरे को भी चाहिए। थैंक यू यार, थैंक यू सुजाता फॉर दिस सजेशन, थैंक यू। क्या पता शायद सुजाता जी ही आपको दिला दे। हाँ वो भी हो सकता है। हाँ, you never know, you never know. मैं I'm always ready to accept gifts from anyone in the group यार, कोई भी दान देना चाहे मेरे को, मैं दिल से। हाँ, गिफ्ट्स तो यूनिवर्स का दिया हुआ है, कोई भी दे, भी मीडिया का कोई भी हो सकता है। Okay. Exactly. And then at night you will use magic rock for the ritual. There's a night ritual है आपका. What is the best moment in the day? You will hold the rock and you will say thank you for that moment, the best moment of the day. So this is what, and thank you so much. Anybody has anything to share? आज तो हमारा सेशन काफी लंबा चला गया। आज लंबा चला गया। True, true. It was awesome. हर बार जितनी भी बार मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो एक अलग ही उसमें हम पहुंच जाते हैं। Yes. Dr. JP, we missed you. Thank you. Thank you for coming. Thank you, sir. Anything you would like to share? Okay, got it. Great. Thank you, everyone. Thanks for your patience and thanks for your participation.
It was an awesome and wonderful session. Thank you so much. Thank you. Thank you. It so was much. wonderful Thank you to session. each Yeah, one right, of Thank you. you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you.